Hello students, in today's video lecture, that is a lecture 7, we are going to study about the separation of the mixture, a very important topic of the chapter. So make the notes properly and note down the things. Okay, separation of mixture. Now how to do separation of mixture? As we know, we have mixtures है हमारे पास, and that mixture consists of pure substance. So pure substance को उसमें से obtain करना पड़ेगा. So that is done by a separation of mixture. So separation of mixture mainly is done by the various constituent of mixture have different physical properties such as density, solubility, size of the particles, behavior towards magnet, volatility and boiling points. So separation of the mixture, or you can say the components of any mixture, can be separated by simple laboratory methods. अब ये जो laboratory methods है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन सारे बेसिक पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू चूज सुटेबल मेथड. आपको एक मेथड चूज करना पड़ता है फॉर द सेपरेशन. नाउ दिस डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर, and the method to be used for separating a mixture depends upon the nature of the constituent. किस पे डिपेंड कर रहा है? Nature of the constituent. Okay, so different mixtures are separated by using different physical process. Different mixtures को हम different physical process से separate करते हैं. अब कैसे करते हैं? Let us see. The various physical processes which are commonly used to separate the constituent of mixtures are first sublimation. पहला मेथड क्या है? Sublimation. और भी बहुत सारे. सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन, और कौन से मैग्नेट की मदद से. थर्ड सॉल्वेंट यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट. फोर्थ इज फिल्ट्रेशन. फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंट्रिफिकेशन एंड इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, distillation, fractional distillation and separating funnel. So these are the various method which we can use or the techniques used to separate the constituent. Mixture को constituent से separate करने के लिए, और you can constituent को mixture से separate करने के लिए हम ये methods use कर सकते हैं. So let us see each of the separating techniques in detail. So in some cases more than one of this process are also used. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही केस यूज़ कर सकते हैं. सब्लिमेशन ही यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए, सिर्फ मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं, एक से ज़्यादा भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं. So to learn the separation of mixture, we will consider the following three cases. First, mixture of two solids. सेपरेट कर देते हैं उनको तीन कैटेगरीज में. पहला मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स की कैटेगरी में, सेकेंड मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड की कैटेगरी में, और थर्ड मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स की कैटेगरी में. So separation of mixture by two solids. Now two solids, that is first by either by the process of sublimation or either by using a magnetic separation. Okay. Sublimation. Now what is sublimation? We have studied this in the first chapter topic, that is the process of sublimation. What is sublimation में क्या होता है? पहले मुझे बताओ what is the process of sublimation. सोचो क्या है sublimation? Just recall it fast everyone. What is sublimation? The process of conversion of solid directly into gases without coming into which state? Liquid state. That was sublimation. So कहाँ पे use होगा ये? उन sublimation process वहाँ पे use होगा. The process of sublimation is used to separate those substance from a mixture with sublime on heating. मतलब वो हीटिंग करने पे क्या हो जाएंगे? सब्लाइम हो जाएंगे. हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे आप देखो, और जो सब्सटेंस अंडर को सब्लिमेशन होता है ना, उसको सब्लाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब्लाइम. व्हाट इज सब्लाइम? द सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल योर अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम सब्सटेंस because it is undergoing sublimation. Okay, substance like camphor, ammonium chloride, as I said, naphthalene balls, iodine, etc., dry ice, they are what? They are all sublime substance. So as you will see the activity, आप activity में ऐसे पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पे आपका sublime salt है, उसको मैं evaporate कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? सेपरेट कर रही हूँ हीट करने पे. ठीक है, और यहाँ पे वो एक बार वेपराइज हो जाता है एंड सॉलिड यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है. So what happened? What you are doing in this? There is an activity to separate the constituents of mixture containing common salt and ammonium chloride. अगर मैंने मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दिया है आपको और बोला है दोनों को सेपरेट करके मुझे दो, उसमें से अमोनियम क्लोराइड मुझे सेपरेट करके दो एंड कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करो. सो व्हाट यू हैव टू डू? You have to take a mixture of common salt and ammonium chloride in a dry china dish. This is a china dish. This is a china dish. Dry china dish में वो रखो. Place the china dish on a tripod stand. ये आपका ट्राईपॉड स्टैंड है. This is your tripod stand. उस पर प्लेस करो and heat it. और उस पर एक शीट भी होगा, ठीक है, एस्बेस्टो शीट होगा उसमें. फिर उसको आप हीट करना स्टार्ट करो.
एंड प्लेस अ इन्वर्टेड फनल, फनल को इन्वर्ट करके उसके ऊपर कॉटन प्लग होना चाहिए, प्लग द ओपनिंग ऑफ द फनल विद द कॉटन प्लग, क्योंकि फिर वो इवापोरेट हो जाएगा ना, कलेक्ट कैसे करोगे, वो पूरा इवापोरेट ही हो जाएगा. नाउ हीट द चाइना डिश ऑन अ वेरी लो फ्लेम. Observe the white fumes. What you will observe, the white fume coming out of the mixture. This white fumes start depositing as a white solid. इसको हीट करना जब स्टार्ट करोगे सॉल्ट को, तो white fumes आना स्टार्ट करेंगे और वो यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगी on the inner wall of the funnel. And after a few minutes you stop the heating and allow it to cool. उसको cool होने दो. Now remove the funnel from the china dish. funnel से china dish को remove कर दो. सो क्या होगा, ये जो आपका वाइट डिपॉजिट यहाँ पे जो जमा हुआ ना, दैट इज नथिंग बट योर प्योर अमोनियम क्लोराइड. एंड जो बचा होगा चाइना डिश में वो क्या होगा, आपका कॉमन सॉल्ट. सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, नेम द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग. कैम्फर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. विद कैम्फर क्या है, सबलाइम सब्सटेंस, तो कौन सा टेक्निक यूज करोगे, सब्लिमेशन. नेप्थलीन बॉल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, sublimation technique. Ammonium chloride from common salt, which technique, sublimation. So I hope sublimation is clear to you. Next, magnetic separation. Now magnetic separation में क्या करेंगे, if a mixture contains iron as one of the constituent, it can be separated by using a magnet, as you can see in the diagram here. Sulfur, iron and sulfur filling is there. आई वॉन्ट टू सेपरेट आयरन फ्रॉम सल्फर. सल्फर का मुझे सल्फर पाउडर अलग चाहिए और आयरन फीलिंग्स को अलग चाहिए. सिंपल क्या लूँगी, मैग्नेट लूँगी. मैग्नेट को सॉल्ट के ऊपर प्लेस करूँगी. व्हाट हैपेंस, द मैग्नेट्स, द आयरन गेट्स अटैच टू द मैग्नेट बिकॉज इट हैज सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड सल्फर पाउडर गेट सेपरेटेड. सो आयरन फीलिंग्स और मैग्नेट्स हमको दोनों अलग अलग सेपरेट मिल गए. ठीक है. अब एक और मेथड है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स में, दैट इज हैंड पिकिंग मेथड. सिंपल आप घर पे देखते हो ना, मम्मी के अगर गेहूं में थोड़े बहुत कचरा रह जाता है या फिर चावल में थोड़ा बहुत, राइस में जो थोड़ा बहुत पेबल्स एंड ऑल रह जाता है, तो मम्मी उसको हाथ से निकालती है. तो हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. हैंड पिकिंग एंड सीविंग इज़ अ मेथड टू सेपरेट एंड विनोइंग, ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए. ठीक है. सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड हे, सो विच इज द मेथड, विनोइंग और you can say hand picking. ठीक है. So I hope this is clear to you. You can see this is a magnetic separation over here. ठीक है. रेड वाले मैग्नेट्स है एंड ब्लू वाले नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ये कन्वेयर बेल्ट है, तो यहाँ से मैग्नेट्स क्या होते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट करें. ये मैग्नेटिक कन्वेयर है, कन्वेयर बेल्ट है. मैंने यहाँ पे मेरे सॉलिड्स पार्टिकल्स रखे, ये मैग्नेट है, इसके पास क्या है, ये मैग्नेट है इस वाले बेल्ट में, और यहाँ पे मैं वो मटेरियल्स रख रही हूँ दोनों जिसको सेपरेट करना है. तो रेड वन हैज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द ब्लू वन हैज़ नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मैग्नेट्स पे आके अटैच हो रहे हैं ऊपर और यहाँ पे आके सेपरेट हो रहे हैं, और नॉन मैग्नेटिक वाले अलग से सेपरेट हो रहे हैं. सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. ओके. नाउ सेपरेशन ऑफ नेक्स्ट टेक्निक, हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड. तो मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड वाला क्लियर है आपको, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड विनोइंग एंड दैट सीविंग. एंड इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड. First method, there are different methods in this also. First is filtration. Now what is filtration? Filtration in the sense the process of removing insoluble solids from a liquid by using a filter paper is known as filtration. क्या करूँगी मैं यहाँ पे, फिल्टर पेपर लूँगी सेपरेट करने के लिए. ईजी है, घर पे भी हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन. जैसे चाय, मम्मी चाय बनाती है, ठीक है, योर मदर्स कुक टी फॉर यू. तो व्हाट हैपेंस, शी फिल्टर द टी, यू उसमें जो पत्तियाँ रह जाती है, टी लीव्स, उसको क्या करते हैं मैम, मम्मी फिल्टर करती है यूजिंग दैट छन्नी. दैट इज नथिंग बट अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट. सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ यूज ऑफ द टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके. और यू कैन यूज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे सैंड और वाटर के सोल्यूशन को मैं सेपरेट कर सकती हूँ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग. तो सैंड क्या है आपका, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और वाटर जो उसमें है सोल्यूबल, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर, फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, कोन जैसा बनाया, उसको कोनिकल फ्लास्क में प्लेस किया, एंड लिक्विड जो आपका फिल्टर पेपर में सॉलिड वो उसको है, तो आपका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट. जो फिल्टर होके निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट आके नीचे कलेक्ट हो जाएगा और आपका ऊपर
जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड फिल्टर पेपर में रखा तो क्या होगा, फिल्टर पेपर से फाइनल से वाटर नीचे आ गया और इनसॉल्युबल सब्सटेंस रेसिड्यू ऊपर फिल्टर पेपर में ही कलेक्ट हो गई। ओके, next process is centrifugation. Now what happens in centrifugation? Centrifugation is nothing but a method of separating the suspended particles of a substance from liquid in which mixture is rotated or spun at a very high speed. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपका सेंट्रीफिकेशन का आपके घर पे मम्मी क्या बोलते हैं बटर मिल्क को सेपरेट करती है, दैट इज यूजिंग दिस मेथड। बेस्ट एग्जांपल सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम को मिल्क से प्रोसेस को निकालने के लिए डेयरीज में यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे ना तो मम्मी मलाई जमा करती है आपके घर पे, इफ़ सामवन सबके घर पे नहीं होता, कोई कोई करते होंगे मम्मी मलाई जमा, फिर मम्मी उसमें से बटर मिल्क बनाती है और क्रीम को सेपरेट कर देती है, राइट। सो व्हाट शी डज, शी यूज टू चर्न यूजिंग आजकल तो ब्लेंडर्स होते हैं, तो ब्लेंडर भी एक तरह का सेंट्रीफिकेशन का ही काम करते हैं, वो रोटेट करते हैं और हाई स्पीड में, तो हाई स्पीड में जब रोटेट करते हैं जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो आप देखोगे तो वो क्रीम जैसा पार्टिकल ऊपर आ जाता है और जो लिक्विड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ सेंट्रीफिकेशन। व्हाट हैपेंस इन सेंट्रीफिकेशन, ए सेंट्रीफिकेशन इज यूज्ड टू separate a suspended solid particles from a liquid quickly. So when the centrifugation is switched on करते हैं तो क्या होता है, उसमें से वो रोटेट करता है विद अ वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड से रोटेट करता है तो उसमें फोर्स एक्ट करता है उसके आसपास। टेस्ट ट्यूब में, जैसे टेस्ट ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब में बिफोर एंड आफ्टर देखो बताया है कि दोनों साथ में है, बटर मिल्क मिल्क में जो जमा हुआ है, और जब उसको सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, रोटेट करता है ये बहुत हाई स्पीड में ऐसे, तो क्या हो जाता है, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाता है और जिसका लाइटर वेट है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड। सो ये पहले इनिशियली ऐसे प्रोसेस बटर का देखो, मैंने आपको बोला तो बटर चर्निंग के लिए ऐसा यूज़ किया जाता था बहुत पहले। दिस इज़ द ओल्ड टेक्निक। मॉडर्न में तो अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है प्रॉपर। सो दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज्ड। नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस वे। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, समझ में आया इसमें मेथड में होता क्या है, मैं एक और बात बता रही हूँ। इन दिस मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन द मिक्सचर ऑफ द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या करते हैं, हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। सो एज इट रोटेट्स विद अ वेरी हाई स्पीड, फोर्स उस पर एक्ट करता है एंड जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में और ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ मेनली सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन यूज होता है आपका बटर को मिल्क से सेपरेट करने के लिए चर्निंग प्रोसेस में। ओके, next is crystallization. Now what is crystallization? The process of cooling hot, or you can say concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. Or in simple, when I say what is crystallization, it is nothing but a process to obtain a purified substance from impure one. इम्प्योर में से मुझे प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करना है तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज़ करूँगी, आई विल यूज़ क्रिस्टलाइजेशन। Okay, now what happens, the cleared है what is crystallization, the process of obtaining pure substance, solid substance from the impure sample। क्या करते हैं हम crystallization process में, तो क्या करेंगे हम, आपको सॉल्ट दिया होगा, सॉलिड सब्सटेंस दिया होगा, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, उसको आप मिनिमम वाटर में डिजोल्व करोगे टू फॉर्म अ सोल्यूशन। अभी उस सोल्यूशन को फिल्टर करोगे टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ओके, नाउ द क्लियर सोल्यूशन, अब जो इम्प्योरिटीज़ आपकी फिल्टर करके निकल गई, फिर उसमें से क्लियर सोल्यूशन को क्या करोगे, आप हीट करोगे। व्हाट यू विल डू, यू कैन सी द सेटअप ओवर योर, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया है। मैं जो प्रोसेस आपको मेथड्स बोल रही हूँ आप उसमें देखो क्या किया, इम्प्योर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स था, सॉलिड सब्सटेंस को मैंने मिनिमम पानी में डिजोल्व किया। ठीक है, फिर उस सोल्यूशन को फिल्टर किया और आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस को उसमें से रिमूव किया। ओके, देन द क्लियर सोल्यूशन इज हीटेड इन अ वाटर बाथ। इसको बॉइलिंग वाटर रखा है, उसके ऊपर जब रखा है तो उसको हम वाटर बाथ करते हैं, तो उसको हीट किया मैंने वाटर बाथ पे। ठीक है, व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे, सो उसको हॉट होने दो, सैचुरेट होने दो एंड उसको कूल होने दो। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज अब उसमें प्रेजेंट होगी वो सोल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में डिजोल्व हो गई होगी ना वाटर में, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो इम्प्योरिटीज वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, इवोपरेट हो जाएंगी
एंड लास्ट में आपको जो आपके डिश में बचा होगा दैट इज द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड्स आर फॉर्म्ड एंड रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई क्रिस्टल्स था नहीं, उसको हीट करने लग गए तो वाटर क्या हो गया, इवापोरेट होना स्टार्ट किया और धीरे धीरे प्योर क्रिस्टल सेपरेट होना स्टार्ट हो गए. अब क्या करेंगे, हम जो क्रिस्टल्स बचे हुए थोड़ा बहुत पानी भी रहेगा उसमें, बट क्रिस्टल्स को अब हम क्या करेंगे, प्योर सॉलिड्स बाय फिल्ट्रेशन उसको सेपरेट कर लेंगे और उसको फिर ड्राई करेंगे और आपको आपका प्योर कॉपर सल्फेट या फिर प्योर कोई भी सब्सटेंस आपको मिल जाएगा. ओके एंड क्लियर्ड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट टेक्निक इज इवापोरेशन. नाउ व्हाट इज इवापोरेशन? द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन for separating a mixture is based upon the fact that liquid vaporizes easily whereas solid does not. ठीक है, इवापोरेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू ऑब्टेन द सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए मेनली इवापोरेशन वहाँ पे यूज़ होता है. इवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर. बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवापोरेशन. सिंपल क्या ले रहे हो, कॉमन सॉल्ट ले रहे हो, उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हो तो वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और नीचे आपका क्या बच जाएगा, रेसिड्यू, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट. ओके, नाउ इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में से अगर आपको पूछा जाए विच इज द बेस्ट मेथड, कि दोनों का ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है ना, उसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी डिजोल्व फॉर्म में, तो उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, वहाँ पे भी हीट कर रहे हो, बट वहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, प्योर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं और यहाँ पे प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिल रहा. सो दे आस्क यू इफ इन एग्जाम कि विच मेथड इज मोर सुटेबल, सो विच मेथड इज मोर प्रिफरेबल एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइजेशन एंड इवापोरेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट प्रिफरेबल. ओके, next technique is chromatography. Now what happens in chromatography? Just listen carefully. Chromatography is a technique for separating two or more dissolved solids which are present in solution in very small quantities. बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई दो या मोर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को हमको डिजोल्व करना है. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मेनली हम पेपर क्रोमेटोग्राफी आप लोग यूज़ करोगे. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस, this technique is used to separate black ink in a mixture of several colored dyes which can be separated by paper chromatography. black ink क्या है, मिक्सचर है ना सेवरल कलर डाइज का, ब्लैक कलर बहुत सारे कलर्स का बना होता है. ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टेक्निक, क्या करो, the different color dye present in a black ink can be separated by performing a paper chromatography. You take a पेपर जैसा फिल्टर पेपर जैसा लिया, वहाँ पे एक बेस लाइन को मार्क किया एंड वहाँ पे आपका ब्लैक इंक या फिर जो भी स्पॉट ऑफ इंक है जिसमें से आपको कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उसको स्पॉट करो. ठीक है, देन प्लेस इट इन अ प्रॉपर सॉल्वेंट एंड वो वाटर लेवल पता है, जहाँ तक फिल्टर पेपर है वहीं तक उसका वाटर लेवल होना चाहिए. ठीक है, सो पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक और एनी इंक ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाइन. लेट द इंक ड्राई, इंक को ड्राई होने दो. ठीक है, so when the drop of the ink has dried, the filter paper strip is lowered into a tall glass jar containing some water in it. उसमें water रखो in its lower part, keeping the pencil line at the bottom. Now the filter paper strip is held vertically by attaching the upper end of the glass with a sellotape. ऊपर से पकड़ के रखना, वो नीचे पूरा ड्रॉप मत कर देना वरना गिर जाएगा. ठीक है, द वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप. वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर आता रहेगा और धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें से धीरे धीरे कलर्ड कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट होते जा रहे हैं. दिस वे यू विल ईजिली ऑब्जर्व इट. ब्लैक कलर की इंक में से कलर्ड कंपोनेंट्स को हम इस वे से सेपरेट आउट करते हैं. सो दे आस्क यू वेयर इज दिस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज्ड. It is used to separate two or more substance present in the same solution. Same solution में अगर दो और more substance है तो मुझे उनको separate करना है तो I can use this chromatography method. Applications of chromatography. Chromatography is used to separate solution of colored substances, that is dyes and pigments. Second, chromatography is used in forensic science to detect and identify trace amount of substance like poisons in the constituents of bladder or stomach. Next, chromatography is also used to separate small amounts of products of chemical reaction. पहला कहाँ यूज़ हो रहा है, कलर कंपोनेंट्स को, डाइज और पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट, फॉरेंसिक्स टेस्ट में डिटेक्ट करने के लिए कि आपका कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ पॉइजन्स है कि नहीं, उन्होंने खाया है कि नहीं.
ठीक है, यूजिंग दिस मेथड एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट को चेक करने के लिए वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन, उसका जो कंपोनेंट उसने स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट में मिक्स किया था, क्या वो कम्प्लीटली रिएक्शन हुआ है कि नहीं, हम इसकी मदद से पता कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन. अभी हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक्स चेक कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड वाले में, तो उसमें कितने सारे टेक्निक्स है देखें. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन. व्हाट हैपेंस ओवर हियर, डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड a mixture of two miscible liquids. Now what is miscible, जो एक दूसरे के साथ completely mix हो जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, miscible liquids. Having different boiling points, इनके बीच में जो boiling points होगा more than 20 डिग्री सेल्सियस होगा, दो liquids के बीच में more than 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड. ये मेथड को हम कॉमन सॉल्ट और उसके मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिंपल आपका डिस्टिलेशन मेथड. अब इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट पे अटेंशन व्हाट हैपेंस ओवर हियर. ये रहा आपका डिस्टिलेशन टेक्निक. ठीक है, क्या होगा इसमें, आप मिक्सचर लोगे अबाउट जो भी आपको सेपरेट करना है, जैसे मुझे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर का सेपरेट करना है. ठीक है, तो मुझे इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है. तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, हीट कर रही हूँ मैं उनको, फ्लास्क में लिया और मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया. अब व्हाट हैपेंस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा दैट विल get separated first. Now take about 100 ml of given mixture in a distillation flask. Set the distillation flask. This is your distillation flask. This is your condenser, your thermometer to check the boiling point. And जो separate out होगा वो अलग, जैसे एसीटोन एंड वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. एसीटोन का इट इज समवॉट 75 to 78 डिग्री सेल्सियस. इज हीटेड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द लिक्विड. सेट द डिस्टिलेशन एपरेटर सेट किया, हीट करो फ्लास्क को लो फ्लेम में अंटिल द सोल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग. बॉयल होने दो सोल्यूशन को, आप उसको हीट करो. सो जब आप हीट करते हो, सून द टेम्परेचर बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 75 to 78. जैसे ही आएगा, द इथेनॉल स्टार्ट्स बॉइलिंग, और सॉरी द एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड दैट एसीटोन वेपर्स गेट कंडेंस टू गिव यू प्योर इथेनॉल. वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म से यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा. यहाँ पे पानी है तो पानी क्या करेगा, उन वेपर्स को कंडेंस करेगा, और कंडेंसेशन होता है तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. और आपको यहाँ पे आपका प्योर एसीटोन अलग मिल जाएगा और वाटर अलग मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस वे यू कैन सेपरेट आउट द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, और यू कैन से लिक्विड इनटू लिक्विड ऑल्सो. ठीक है, सी वाटर और सॉल्ट का करना होगा तो क्या करेंगे, सी वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे, क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा और आपका सॉल्ट इसमें ही रह जाएगा. ठीक है, नाउ सेपरेशन, आई होप दैट ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू. इसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का, वो आप सॉल्व करोगे. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more liquids. थर्ड कैटेगरी, द लास्ट कैटेगरी इज सेपरेशन ऑफ 2 or more liquids. हाउ टू separate mixtures of 2 or more liquids. The separation of miscible liquids first by separating funnel. सेपरेटिंग फनल ऐसा एपरेटर होता है. ठीक है, आप यहाँ पे लिक्विड दे सकते हो, दो लिक्विड का अलग अलग लेयर इजीली देख सकते हो. यहाँ पे कॉक है, ये एपरेटर्स है. तो द सेपरेशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स बाय अ सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटी. दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि लोअर डेंसिटी वाला ऊपर रह जाएगा और हायर डेंसिटी वाला नीचे आ जाएगा. बट अगर दोनों के लिक्विड्स की डेंसिटी सेम होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे. अगर दो मिक्सेबल लिक्विड्स है तो क्या हम सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं, नो. सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर. ठीक है, ऑयल और वाटर में आप इजीली देख सकते हो ना, ऑयल ऊपर फ्लोट करता है और वाटर नीचे रहता है, और लेयर जैसा आपको इजीली दिखता है, आप इजीली सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो. सो ये आपका सेपरेटिंग फनल है, स्टॉप कॉक है. ठीक है, लेयर जैसा आप देख सकते हो. तो जैसे जैसे वाटर का लेयर नीचे आएगा, केरोसिन, आप धीरे धीरे स्टॉप कॉक को ओपन करो, वाटर नीचे धीरे धीरे आता रहेगा और ऊपर केरोसिन अलग हो जाएगा. तो एक बार वाटर का लेवल मार्क नीचे आ गया तो आप फिर क्या कर सकते हो उसको, then you can stop the cork and kerosene will be in another beaker in the separating funnel itself, और water आपका दूसरे उसमें आके easily collect हो जाएगा. So I hope this is clear to you how to separate the mixture of 2 immiscible liquids. Okay, now next, last method to separate the mixture of 2 liquids, it is fractional distillation. Now what happens in fractional distillation?
Fractional distillation is the process of separating two or more miscible liquids by distillation. ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड ही है, बट सिंपल डिस्टिलेशन और इस डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन द फ्रैक्शंस बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, एंड द सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा. नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम. ऐसा फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं हम, वेरे सिंपल डिस्टिलेशन में हम ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज़ नहीं करते. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड अ सिंपल डिस्टिलेशन. A fractional column is a long vertical glass tube with a glass beads. As you can see, glass beads है, vertical column है, glass beads से separate out होते हैं. The glass beads provide a large surface area for hot vapors to cool and condense repeatedly. ये glass beads क्या provide करते हैं? बहुत ज़्यादा surface area provide करते हैं. अगर किसी दो मिक्सचर्स का लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो और वो दोनों साथ में निकलना स्टार्ट करेंगे, तो ये ग्लास बीड्स क्या कर रहा है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले ही उसको सेपरेट कर देगा, एंड जिसका थोड़ा लेट आने वाला होगा उसको वापस नीचे सेंड बैक करेगा. ठीक है, सो दिस इज द एपरेटर. यू कैन सी फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम. ऐसा सिंपल डिस्टिलेशन में आपके पास फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम नहीं था. मिक्सचर लोगे, हीट करना स्टार्ट करोगे, जिसका पहले होगा वो प्योर कंपोनेंट कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा, एंड धीरे धीरे यहाँ पे आके आपका सेपरेट आउट होके सेपरेट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर. ठीक है, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करना है. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस. सो दैट टाइम आई कैन यूज़ द सेपरेटर. ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर को हीट करूँगी डिस्टिलेशन फ्लास्क में, फिटेड विद अ फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम. सो व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, बोथ अल्कोहल and water forms vapor and their boiling points approaches. So the alcohol vapor and water vapor rise up in the fractionating column, and the upper part of the fractionating column is cooler. So as the hot vapor rises up in the column, they get cooled and condensed and trickle back into the distillation flask. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आएगा. एक बार 78 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, सो वो क्या करेगा, वो वेपर्स यहाँ से यहाँ पास करेगा और वो यहाँ कलेक्ट होके धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे कलेक्टर के पास आके आपका कलेक्ट होके स्टार्ट होंगे. देखो, अल्कोहल हीट हो रहा है, तो जैसे 78 डिग्री सेल्सियस तक लेस था, इसलिए वो वापस उसको नीचे ही फेंक रहा है. बट एक बार अगर 78 डिग्री सेल्सियस पार हो गया, तो वो उसको ऊपर भेजेगा और वो आके यहाँ पे आपका आउटलेट में आके कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा. ठीक है, सो दिस हैपन्स इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. So I hope fractional distillation is also clear to you. What is the application of fractional distillation? Fractional distillation is used to separate mixture of miscible liquids like alcohol water mixture, acetone water mixture. ठीक है. Next, fractional distillation is used to separate crude oil, petroleum into useful fractions such as kerosene, petrol, diesel, etc. And fractional distillation is also used for separation of gases. Mixture of gases. Now let us see separation of gases of air. This is the instrument for separation of mixture of gases of air. क्या करोगे आप, आपका एयर पास करोगे. ठीक है, एयर गैशियस फॉर्म में होगा, तो उसको अंडर प्रेशर में हॉट एयर के प्रेजेंस में पास करोगे, तो कूल करोगे, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में. सेपरेटर है, सेपरेटर्स में डालोगे तो लिक्विड मिक्सचर आपका जो भी है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आके धीरे धीरे फिर क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस, पे अटेंशन. एयर compressed and cool by increasing the pressure and decreasing the temperature. गैशियस फॉर्म को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था आगे फर्स्ट चैप्टर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मदद से. देन अलाउ द वार्म अप, उसको वार्म अप होने दो स्लोली इन द फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, धीरे धीरे वार्म अप होगा, एंड गैसेस गेट सेपरेटेड आउट एट डिफरेंट हाइट्स. उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रीजन होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन जैसे -180 डिग्री 83 है, आर्गन का, देन नाइट्रोजन. सो दिस वे द गैसेस कैन बी ईजिली सेपरेटेड. Okay, what happens, I am explaining it again. What happens, the air is first fitted to remove the dust and the water vapor and carbon dioxide is removed. ठीक है, so if water vapor and carbon dioxide not removed, then they would become solid in the cooling process and block the pipes. हम लोग water vapor और carbon dioxide को remove करते हैं. ठीक है, फिर air को compress करते हैं high pressure में, and then cooled. air को compress करके क्या करेंगे, high pressure में फिर हम cool करते हैं. So this cooled air is then allowed it to expand quickly into a chamber through a jet. Now this expansion cool
the air even more. Okay, so the process of compression, or you can say cooling and rapid expansion of air is repeatedly again and again making the air more and more cool. Repeat करते रहते हैं ताकि air अच्छे से cool हो जाए. Ultimately the air gets so cooled, इतना cool हो जाता है कि वो किस में convert हो जाता है, liquid में. ठीक है. So the liquid air is fed into a tall fractionating column. Fractionating column होगा यहाँ पे, देखो fractionating distillation column बोला है, वहाँ पे fit किया जाता है. फिर उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, धीरे धीरे वार्म करते हैं. So जो liquid nitrogen होगा present in the liquid air has been lowest boiling point, that is minus 196 degree Celsius. So on warming, liquid nitrogen boils off first, and to form nitrogen gas, the nitrogen gas is collected from the top part of the fractionating column. फिर argon को करेंगे उसी में, and फिर हम हमारा oxygen carry out करेंगे. समझ में आया what happens over here? So this was all about your separation techniques. ये है आपका fractionated, ऐसा industrial setup में ऐसा आप देखोगे, gases from the airs are separated by this plant, fractionating gases separation plant. So this is the method which is used. So I hope the separation technique is clear to you. You have to note down, उनके principles note down करने हैं. Principle in the sense वो कहाँ use हो रहा है, मैंने सबके principles starting में दिए हुए हैं. ठीक है. जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ, which separation techniques is used for separating the following? First, sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride मतलब salt, solution in water. You can say evaporation or you can say distillation. समझ में आया? Ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride. So which method? Sublimation. So this way आप exercise का जो last question है वो try करोगे. Thank you.